بہت پرانی بات ہے، شہر بغداد کی دور دراز کی بستی میں ایک بوڑھا غریب چکی بان رہتا تھا، جس نے اس فانی دنیا میں اپنی زندگی کی کئی بہاریں دیکھی تھی اور زمانے کی گرم و سرد ہواؤں کے تھپیڑے بھی برداشت کیے تھے۔ اس بوڑھے نے اپنی تمام عمر حلال روزی کمانے میں بسر کی تھی، جس کی وجہ سے اسے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، جو شمشاد کے درخت کی ٹہنیوں کی طرح بلند قامت اور صحت مند تھے۔ ایک دن باپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا، میرے نور چشم اور پیارو، اس دنیا میں رہنے والے ہر شخص کی زندگی اچھی یا بری گزر جاتی ہے۔ جس طرح تمہیں معلوم ہے کہ موت ایک اونٹ ہے جو ہر دروازے پر سویا ہوا ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ میری عمر کا سورج بھی لبے بام ہے۔ آج نہیں تو کل شاید اپنے اعمال کی گٹھڑی کندھے پر اٹھاؤں گا اور اس فانی دنیا سے کوچ کر جاؤں گا۔ اگر سچ پوچھو تو مجھے اس سفر پر جانے یا دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑنے کا کوئی غم نہیں، لیکن میری غمگینی کا سبب یہی چکی ہے۔ معلوم نہیں میرے بعد کیا ہوگا اور چکی پر کیا گزرے گی۔ چکی بان کے بیٹوں نے جب باپ کی باتیں سنی تو تینوں بیٹے بیت زبان کہنے لگے، ابا جان آپ مطمئن رہیں، ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ چکی کے پہیے کو گھماتے رہیں تاکہ گھر کے اخراجات کی گاڑی بھی چلتی رہے اور چکی کے نہ ہونے سے لوگوں کو کسی قسم کی تکلیف بھی نہ ہو۔ چکی بان نے محبت بڑی نگاہوں سے اپنے بیٹوں کو دیکھا اور کہا، اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی نہیں ہے، اور تم بھی جانتے ہو کہ 200 باتیں آدھے عمل جتنی قیمت بھی نہیں پاتی، اس لیے بات اور عمل کا درمیانی فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیانی فاصلے کے برابر ہوتا ہے۔ کیا میں تم سے امید رکھوں اور مطمئن رہوں کہ تم واقعی میری باتوں پر عمل کرو گے؟ اگر تم تینوں بھائی مل کر اس چکی کے پہیے کو گھماتے رہے تو یقین مانو اس میں تمہاری بہتری ہے، یا پھر جس بھائی کو مناسب سمجھو یہ چکی اس کے حوالے کر دو، ورنہ یاد رکھو کہ اگر اس چکی نے کام نہ کیا تو تم خود بھی بھوکے مرو گے اور دوسرے لوگ بھی تمہیں بددعائیں دیں گے۔ جب بوڑھے چکی بان نے اپنی بات ختم کی تو تینوں بیٹوں میں سے ہر ایک نے کہا، ابا جان میں زیادہ سمجھدار ہوں، اس لیے چکی کا انتظام اچھی طرح سنبھال لوں گا۔ بوڑھے باپ نے بیٹوں کو خاموش رہنے کا حکم دیا اور کہا، عقل سلیم ہی اس بات کا فیصلہ کرے گی، میں دلیل کے بغیر کسی بیٹے کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے بہتر ہوگا کہ تمہارا امتحان لیا جائے تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ تم میں سے کون شخص بہتر ہے اور احسن طریقے سے چکی کے پہیے کو گھما سکتا ہے۔ میری دعا ہے کہ تم تینوں بھائی امتحان میں کامیاب ہو سکو۔ بیٹوں نے جب امتحان کا نام سنا تو نہایت شوق سے تائید کی اور کہنے لگے، ابا جان ہم ہر امتحان کے لیے تیار ہیں۔ بوڑھے باپ نے اپنے ہاتھ زانوں پر رکھے اور اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور دوسرے کمرے میں جا کر اخروٹوں کی 3 گٹھڑیاں اٹھا کر لایا اور بیٹوں کو دیکھ کر کہا، ان گٹھڑیوں میں اخروٹ ہیں، اس لیے آگے بڑھو اور ایک ایک گٹھڑی اٹھا لو، پھر میں تمہیں اگلے قدم کے متعلق بتاؤں گا۔ تینوں بیٹے آگے بڑھے اور ایک ایک گٹھڑی اٹھا لی، کیونکہ یہ گٹھڑیاں زیادہ وزنی نہ تھیں اور باپ تو تینوں گٹھڑیوں کو ایک ساتھ اٹھا لیا تھا۔ پھر ان کے باپ نے کہا، شہر جانے کے لیے اپنی سواری کے گدھے تیار کر لو اور زیادہ راہ کے لیے کچھ خوراک اور دیگر اخراجات کے لیے کچھ رقم بھی رکھ لو۔ تینوں بیٹوں نے خوشی خوشی اپنے باپ کے حکم کی تعمیل کی اور سفر کی تیاری کرتے ہوئے زیادہ راہ ساتھ لیا اور گدھوں پر سوار ہو کر چکی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ باپ بھی لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا آیا اور بیٹوں کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میرے بیٹو تمہارا امتحان اب شروع ہوتا ہے، تم اب شہر کی طرف جاؤ، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے تم خیریت سے جاؤ گے اور بعافیت واپس لوٹو گے۔ شہر میں میرے 3 پرانے دوست ہیں، اس لیے تم میں سے ہر ایک میرے ایک ایک دوست کے پاس پہنچ جانا اور انہیں میرا سلام کہنا اور ان سے پوچھنا کہ دنیا میں حلال رزق کیسے حاصل کیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھو اس سفر میں 3 دن سے زیادہ خرچ نہ ہو۔ ویسے اس بات کا کبھی امکان ہے کہ اگر تم نے یہ دیر کر دی تو باپ کی جگہ خالی پاؤ گے۔ بڑے بیٹے نے پوچھا، ابا جان پھر ہمارے امتحان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ باپ نے بڑے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، ہماری پوری زندگی ایک امتحان ہے۔ یہ درست ہے کہ تمہارا یہ سفر دوسرے سفر کی طرح ایک چھوٹا سا امتحان ہے، لیکن ان چند دنوں میں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس شخص کو کون کون سے مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب جلدی کرو اور اپنے بھائیوں کے ہمراہ نکل جاؤ، تمہارا کام زیادہ ہے اور وقت کم ہے۔ بیٹوں نے جب باپ کی باتیں سنی تو اپنے اپنے گدھے پر سوار ہو گئے اور اپنا دل سفر کے لیے سپرد کر دیا۔ اب وہ بغداد شہر کی طرف جا رہے تھے، لیکن ان کے دل و دماغ میں طرح طرح کے خیالات کی آمد و رفت تھی۔ یعنی ہر بھائی سوچ رہا تھا کہ وہ ہی امتحان میں پورا اترے گا اور جب اپنے باپ کے پاس پہنچے گا تو چکی کا مالک بن جائے گا۔
अब इन्हीं ख्यालात में खोए हुए वो चल रहे थे कि अचानक मुड़ कर देखा तो मालूम हुआ कि वो अपने गांव से काफी दूर आ गए हैं और चक्की भी इनके नजर से ओझल हो गई है और जो चीज इनके सामने थी वो शहर का लंबा सफर है जिसके लिए इन्हें बस चलते रहना है। काफी देर सफर करने के बाद वो चलते चलते थक गए। अचानक इन्हें दूर से एक सायादार और आराम की जगह दिखाई दी, इसलिए मंझले भाई ने दूसरे भाइयों की तरफ देखते हुए कहा, अब आराम का वक्त है, मेरे ख्याल से कुछ खा पी ले। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो हमारे बदन की बाकी मांगदार ताकत भी खत्म हो जाएगी। दूसरे भाइयों ने भी इसकी तजवीज मान ली और अपने गधों से खाने का सामान उतारने लगे। अचानक बड़ा भाई चलाया और फरियाद करते हुए कहने लगा, हाय अफसोस, तुमने देखा कि क्या हुआ। इसके दोनों भाई आगे बढ़े और पूछने लगे, क्या माजरा है, कौन सी आफत टूट पड़ी है। बड़े भाई ने अपने मशकीसे की तरफ इशारा किया और कहा, रास्ते में इसका मुंह खुल गया है और कतरा कतरा करके तमाम पानी बह गया है। अब मैं परेशान हूँ कि क्या करूँ। छोटे भाई ने कहा, तुमने बड़ी लापरवाही से काम किया है, अब तो हमें अपनी प्यास बुझाने के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। बड़ा भाई कहने लगा, बड़ा अजीब सफर है, सफर में ऐसे हादसा तो होते ही रहते हैं, इसलिए आओ बैठकर सोचते हैं। छोटे भाई ने मशकीजा उठाया और कहा, पहला और जरूरी काम ये है कि पानी की तलाश करें। बड़े भाई ने कहा, आग जलाने के लिए लकड़ियां जमा करनी चाहिए, लेकिन पानी की तलाश में कौन जाएगा, लकड़ियां कौन जमा करेगा और कौन खाना पकाएगा। तीनों भाई खामोश थे और एक दूसरे को देख रहे थे। बड़े भाई ने इन्हें देखा तो कहा, मुश्किल और अहम काम लकड़ियां जमा करना है, लकड़ियां ना हुई तो हम खाना ना पका सकेंगे। ये कहकर बड़ा भाई अपनी जगह से उठकर लकड़ियां लाने के लिए चल पड़ा। मंझले भाई ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पहाड़ खोदना हो। मेरे ख्याल से मुश्किल काम खाना पकाना है। अगर लकड़ी और पानी मौजूद हो और पकाने वाला कोई ना हो तो हम भूखे मर जाएंगे। मंझले भाई ने इतना ही कहा था कि अपनी जगह से उठा और पकाने के लिए चूल्हा बनाने में मशगूल हो गया। अब छोटा भाई रह गया था और इसके सामने खाली मशकीजा पड़ा था, लेकिन इसे समझ नहीं आ रहा था कि पानी कहाँ से लाए। बहरहाल इसने हिम्मत न हारी और मशकीजा उठाकर पानी की तलाश में चल पड़ा। अपने दिल में कहने लगा, मेरे भाइयों ने अपना अपना काम संभाल लिया, इसलिए बेहतर होगा कि मैं भी पानी लाने में कामयाब हो जाऊं। खाना पकाने और प्यास बुझाने के लिए हमें पानी की अशद जरूरत है। छोटे भाई ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी और पहाड़ की तरफ चल पड़ा। छोटा भाई जानता था कि अक्सर पहाड़ों में चश्मे होते हैं और शायद वो भी किसी चश्मे पर पहुंच जाए। इसने पहाड़ी सिलसिले के चंद टीले देखे, लेकिन जितना भी आगे गया इसे पानी का वजूद कहीं भी नजर ना आया। परेशान था कि कहीं ऐसा ना हो इसे पानी ही न मिले और इसके भाई प्यास से जान दे दे और इसी तरह हमारा सफर यही तमाम हो जाए। फिर हम ना तो शहर जा सकेंगे और ना ही अपने बाप के पहलू में बैठना नसीब होगा। फिर वो कुछ देर के लिए एक चट्टान के साये में बैठ गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद इसने इरादा किया कि अपनी आंखें और कान अच्छी तरह खोले और पानी के चलने और फरार की आवाज पर ध्यान दे। मुमकिन है इसे पानी नजर आए या इसके चलने की आवाज सुनाई दे। इधर उधर फिरने से इसके हाथ कुछ न आएगा। छोटे भाई ने जहन में जब ये नई तजवीज आई तो अपनी जगह से उठा और दोबारा पानी की तलाश में पहाड़ी सिलसिलों में फिरने लगा। वो इसी तरह चल रहा था कि इसे दूर से पानी के कतरे के टपकने की आवाज आई। फिर इसने अपने कान खड़े किए और इसकी आवाज के ताक़ुब में चल पड़ा। अभी वो ज्यादा दूर न गया होगा कि पानी के चश्मे पर पहुंच गया। अभी वो चंद कदम ही चला होगा कि एक पत्थर को फलांगते हुए फिसला और गिर पड़ा, जिससे इसके हाथ और बाजू शदीद जख्मी हो गए। फिर वो बड़ी मुश्किल से संभला और सबसे पहले मशकीजे को देखा जो अभी तक सही सलामत है, इसलिए खुश हुआ और अपने जख्मों को भी ना सहलाया और आगे चल पड़ा ताकि जल्द से जल्द अपने भाइयों के पास पहुंच जाए। जब छोटा भाई वहां पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि दोनों बड़े भाई सोए हुए हैं एक ऐसी नींद में कि गोया 7 बादशाहों को ख्वाब में देख रहे हों। मंझले भाई की नींद बड़े भाई से ज्यादा गहरी थी। इसने अखरोटों की थैलियां भी खोली हुई थी, इसलिए छिलके इधर उधर बिखरे पड़े थे। छोटे भाई ने इन्हें बेदार किया। जैसे ही वो बेदार हुए मशकीजे को देखकर इस पर टूट पड़े और गटागट पानी पीने लगे। जब वो सीन हो गए तो एतराज करने लगे, अगरचे तुमने मशकीजा उठा लिया था लेकिन असल में सैरो से आहत करते रहे होगे। दूसरे भाई ने कहा, अफसोस, पानी के लिए मैं खुद जाता तो साफ और पाकीज़ा पानी लाता और इतनी देर भी ना लगाता, जबकि हालत ये है कि हमारा काफी वक्त
वक्त जाया हो गया है। दोनों भाइयों के जी में जो कुछ आया उन्होंने अपने भाई को कहते रहे और छोटा भाई खामोशी से सुनता रहा। इसके बाद उन्होंने खाना पकाया। तीनों भाई थके मांद और भूखे प्यासे आखिरकार शहर बगदाद में पहुंचे। छोटे भाई ने जूं ही शहर में कदम रखा तो कहने लगा, मैं तो सबसे पहले अपने वालिद के दोस्त के पास जाऊंगा और इस वालिद का पैगाम पहुंचाऊंगा। मंझले भाई ने कहा, अभी किसी जगह जाने की जरूरत नहीं, सालन तो नहीं है कि ठंडा हो जाएगा। हम कल और परसों तक इसी शहर में हैं। अभी तो थकावट से हमारा बदन चूर है, इसलिए मैं तो पूरा दिन आज आराम करूंगा। बड़ा भाई कहने लगा, अगर मैं थका हुआ ना होता तो जरूर जाता, लेकिन इस वक्त मुझे आराम करना है और इसके बाद बाजार जाकर कुछ खरीदूंगा। आखिर कई सालों से मेरी ये ख्वाहिश थी कि एक जोड़ा खूबसूरत जूते खरीदूं। अगर मैं अब जूते ना खरीद सका तो शायद मुझे फिर कभी मौका ना मिलेगा। अगर मैं कल अपने बाप के दोस्त के पास ना जा सका तो परसों जरूर इनकी खिदमत में पहुंच जाऊंगा। ये सूरत हाल देखकर सिर्फ छोटा भाई ही रह गया था कि अपने भाइयों से पहले रवाना हो और बाप का पैगाम इनके दोस्त को पहुंचाए और इससे हलाल रोजी कमाने के लिए जराए दरियाफ्त करे। मंझला भाई दूसरे दिन सुबह सुबह अपने बाप के दोस्त के पास इसके घर के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। इसकी बीवी ने दरवाजा खोला और कहा, मेरे खामद की तबीयत नासाज थी, इसलिए हकीम से नुस्खा लाया था, अब वो दवा लेने गया है। अगर वो जोहर तक लौट आया तो तुम्हारी मुलाकात जरूर हो जाएगी। मंझला भाई निहायत बेसब्री और जल्दबाजी में था, इसलिए कहने लगा, इस शहर में मेरे और भी कई काम हैं, आज नहीं तो यकीनन कल तक मुलाकात हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कल तुलुए आफ्ताब के वक्त दोबारा आ जाऊंगा। इसने यही कहा और अपने भाइयों के पास सराय में आ गया। दूसरी तरफ बड़ा भाई जूते खरीदने के लिए गया हुआ था। जब वो जूते खरीदने के लिए बाजार पहुंचा तो जूतों के मोल तोल पूछने लगा। इससे महसूस हुआ कि इसके पास रकम कम है, इसलिए अपने भाइयों को तलाश करने लगा और अपनी मजबूरी इनसे बयान की, लेकिन इनके भाई भी इसकी तरह खाली हाथ थे, इसलिए उन्होंने अपने सर झुकाए और कुछ ना कहा। बड़ा भाई जब अपने भाइयों से नाउम्मीद हो गया तो सोचने लगा, अब तो मुझे अखरोटों की थैली फरोख्त करना पड़ेगी ताकि जूते खरीद सकूं। फिर वो दोबारा बाजार गया और अखरोटों की थैली फरोख्त करके अपने पसंदीदा जूते खरीद लिए। इधर तुलुए आफ्ताब के वक्त दोबारा मंझला भाई अपने बाप के दोस्त के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। काफी देर इंतजार के बाद इसे कोई जवाब न मिला, इसलिए समझ गया कि साहब खाना किसी काम से घर से बाहर गया हुआ है। इसलिए मंझले भाई के सफर का तीसरा दिन भी खत्म हो गया। अब तीनों भाई सराय में बैठे थे ताकि अगले दिन वापसी का सफर करें, इसलिए तरह तरह की बातें करते रहे और शहर में जो कुछ देखा और सुना एक दूसरे को बताने लगे। इतने में छोटे भाई ने कहा, अब हमारे लिए कौन सा काम बाकी रह गया? मंझले भाई ने कहा, मेरे जिम्मा जो काम था मैंने पूरा कर लिया, सिर्फ अपने बाप को पैगाम नहीं पहुंचा सका, इसलिए कि बाप का दोस्त सफर पर गया हुआ है और अब मेरा कोई काम बाकी नहीं है। बड़े भाई ने कहा, अगर मुझसे पूछो तो मेरा भी कोई काम नहीं है जिसे मैं पूरा करूं। मैं तो यहाँ सिर्फ जूते खरीदने आया था जो कि मैंने खरीद लिए हैं और अखरोटों की थैली भी फरोख्त कर दी है, सिर्फ पैगाम पहुंचाना है और मैं ये काम कल अंजाम दे दूंगा। छोटे भाई ने कहा, हमें कल सुबह रवाना हो जाना चाहिए। तुम्हें याद होगा कि बाप ने कहा था कि अगर तुम लोग देर से लौटे तो शायद मुझे ना देख सकोगे। अच्छा हुआ कि तुमने याद दिला दिया, इसलिए अगर बाप ने पूछा तो कह दूंगा कि मेरा पहला और जरूरी काम पैगाम पहुंचाना था, लेकिन देर हो गई थी और तुम्हारा दोस्त सफर पर चला गया था, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि जल्द वापस आऊं और घर पहुंचूं। दूसरे दिन सुबह जब तीनों भाई उठे तो अपना सामान बांधा और घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में बड़ा भाई कुछ ज्यादा खुश था। वो अपनी हर बात के साथ कहता कि यकीनन बाप मेरी अक्लो समझ की दाद देगा और मेरे मुकाबले में तुमने जो काम किया है वो बेफायदा और बेनतीजा है, इसलिए कि हमारे छोटे भाई ने तो अखरोटों को छुआ तक नहीं, अलबत्ता मंझले भाई ने अपनी थैली से चंद अखरोट खाए हैं और अपना जी बहलाया है, लेकिन मैंने तो इनसे पूरा फायदा उठाया है और इन्हें फरोख्त करके जूते खरीदे हैं। हालांकि अक्लोमंदी यही थी कि तुम भी ऐसा ही करते और कामयाबी से लौटते। मंझले भाई ने जब ये सुना तो हैरत और ताज्जुब से मुंह में उंगलियां दे दी और कहा, हाय अफसोस, मेरे दिल में यह ख्याल क्यों ना आया और मैंने भी ऐसा क्यों ना किया। यकीनन बाप तुम्हारी अक्लमंदी की बदौलत तुम्हें चक्की का मालिक बना देगा और हमें वहां भी शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। तीनों भाई अपनी अपनी बातों में सरगर्म थे और आखिरकार अपने गांव और घर पहुंच गए। जब बाप की खिदमत में हाजिर हुए तो बाप ने कहा, मेरे बेटो अब जाओ और नहा धोकर साफ कपड़े पहन लो और कुछ देर आराम के बाद मेरे पास आ जाना। तीनों भाई चले गए और नहा धोकर साफ और उजले कपड़े पहनकर खाना खाया और ताजा दम होकर बाप के पास आ गए। तब बाप की खिदमत में हाजिर हुए ताकि सफर के वाकयात और हालात बताए।
बूढ़े बाप ने बेटों की तरफ देखा और कहा, अब बारी बारी अपना वाकया बयान करो जो इस सफर में तुम्हें पेश आया। हर एक बेटे ने प्याज से लेकर लहसुन तक अपनी अपनी सरगुज़श्त बयान की। बूढ़े बाप ने हर बेटे की बातें नहायत गौर से सुनी और कुछ देर सोचने के बाद छोटे बेटे की तरफ इशारा किया और कहा, मेरे बाद तुम्हारा छोटा भाई इस काबिल है कि चक्की के पहिए को घुमाता रहे। मंझले भाई ने अपने बाप के फैसले पर एतराज किया, लेकिन बूढ़े बाप ने गहरा सांस लिया और कहा, मेरे फैसले की पहली वजह यह है कि तुम रास्ते में भूख और प्यास से निढाल थे, तो सबसे मुश्किल काम के अंजाम दही के लिए तुम्हारा छोटा भाई ही कमर बस्ता हुआ और पानी की तलाश में निकला और जख्मी होने के बावजूद मशकीजा भर कर लाया। दूसरी वजह ये कि मैंने जो अमानत इसे दी थी, इसने इसकी अच्छी तरह से हिफाजत की है। मैंने ये तो नहीं कहा था कि अखरोटों को खा लेना या इन्हें बेच देना। और तीसरी और अहम वजह यह है कि इसने अपना फर्ज एहसन तरीके से निभाया है और इस पर अमल करते हुए शहर में दाखिल हुआ, यानी पहली फुर्सत में मेरा पैगाम मेरे दोस्त को पहुंचाया और इससे हलाल रोजी कमाने के तरीके दरियाफ्त किए। बस यही वजह है कि मैं तुम्हारे छोटे भाई को अपनी गैर मनकूला जायदाद यानी इस चक्की का मालिक बना रहा हूँ। ये इस काबिल है कि सख्त और मुश्किल काम अंजाम दे सकता है। ये इस चक्की के पहिए को अच्छी तरह घुमाएगा, लोगों की अमानतें यानी गंदम और आटे की हिफाजत करेगा और इसमें खयानत ना करेगा और इस बात का भी ख्याल रखेगा कि अपने ग्राहकों से जो वादा करेगा इसे अच्छी तरह निभाएगा। इसलिए कोई भी शख्स इस पर बदअहली या बददियानती का इल्जाम आयद ना कर सकेगा। इसलिए आज के बाद यही इस चक्की का मालिक है। बाप ने गहरा सांस लिया और दूसरे बेटों को देखते हुए कहने लगा, अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो बेखतर कह सकते हो, लेकिन क्या इस चक्की का हक तुम्हारे छोटे भाई का है या नहीं? बड़े और मंझले भाई को कुछ कहने की हिम्मत ना हुई, इसलिए बदस्तूर खामोश खड़े रहे और अपने छोटे भाई की कारकर्दगी पर तहसीन करने लगे। इसके बाद छोटा भाई कई साल तक चक्की के पहिए को घुमाता रहा और उम्र भर लोगों की खिदमत करता रहा। वो कई साल इस फानी दुनिया में रहा और इसके कुर्बो जवाब में रहने वाले लोग इसकी जानदारी के मुतरफ थे। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।